haloarene. Yesterday we had discussed preparation of haloarene, that are two methods: electrophilic substitution reaction and Sandmeyer. So in electrophilic substitution reaction, I informed you that when any aromatic compound react with halogen in presence of iron in a dark condition, then it form the haloarene. But if sunlight will be there, then the halogen or the electrophile will not move at aromatic part. It will be move at benzylic position. For this, I had shown this example. In this sunlight is present, so electrophile, that is Br plus, is attack on benzylic position, not on aromatic part. So it form the benzylic product. Then Sandmeyer, I informed you in your book Sandmeyer is given in two steps, but in this the second one step is only Sandmeyer reaction. First step is diazotization. I informed you that when aniline react with sodium nitrite and hydrogen halide in cold condition, then it form benzene diazonium halide. In second step, this benzene diazonium halide is treated with cuprous halide. Cuprous halide, because the valency oxidation state of carbon is +1. So less valency, that's why cuprous, not cupric. Cuprous halide and form the haloarene. By this method, only chloro and bromo can be formed. Then after we had discussed the physical property, that is only one melting point. Then after we had started the chemical properties of haloarene, I informed you haloarenes are showing three chemical properties: SN reaction, reaction with metal, and ES reaction. Out of these three, the reaction with metal was over yesterday. In reaction with metal, there are two, that are Fittig reaction and Wurtz-Fittig reaction. So I informed you that this is given at page number 18. Fittig reaction, when any haloarene or aryl halide react with sodium in presence of dry ether, then it form diphenyl or biphenyl. Diphenyl or biphenyl by joining the two aryl group with each other. This reaction is called Fittig reaction. Next one was their Wurtz-Fittig reaction. Then I informed you it is the combination of Wurtz and Fittig. Wurtz reaction, you have seen कि in this haloalkane is reacted. In Fittig reaction, you have seen कि haloarene is reacted. Now in Wurtz-Fittig reaction, both, that is mixture of alkyl halide and aryl halide, react with each other with sodium in the presence of dry ether, then it form alkyl benzene or alkyl arene. Alkyl benzene or alkyl arene. This reaction is called Wurtz-Fittig reaction. So how many name reactions are over till yesterday? Then in haloalkane, Schwarz reaction, Finkelstein reaction, Wurtz reaction, Grignard reaction, Marconi-Kopf rule, anti-Marconi-Kopf rule, Sergeev rule. In haloarene, the Sandmeyer reaction, Fittig reaction, and Wurtz-Fittig reaction. Now I'm going to start the next chemical property, that is SN reaction, and after SN I will discuss the ES reaction. Now SN reaction, nucleophilic substitution reaction. Now see, please try to find the difference between the reaction कि आखिर क्या difference है, why it is named as this and this is named as this. Both are substitution reaction. दोनों आटे से ही बनी चीजें हैं, एक को पूड़ी कह रहे एक को रोटी कह रहे हैं, ठीक है. तो बोथ आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वन इज न्यूक्लियोफिलिक वन इज इलेक्ट्रोफिलिक.
The difference that I informed you is that attacking reagent. In this, the attacking reagent will be electrophile, that is positive part will be attacked and positive part will be substituted. And in this, negative nucleophile means negative part will be attacked and negative part will be substituted. So now I'm going to start the nucleophilic substitution reaction, that is SN reaction. Now see, SN reaction में in haloarene you will be surprised कि SN reaction दिया हुआ है, but haloarenes are very less. See here, first line, aryl halide, because this is the first chapter of organic chemistry, that's why it is giving you some extra information. After this chapter, in another chapter, these information will not be there कि एसन रिएक्शन ये क्यों नहीं देता है या कब देता है, ऐसा इंफॉर्मेशन किसी चैप्टर में नहीं मिलेगा, केवल पहले चैप्टर में आपको बता रहा है कि एरिल हैलाइड मींस एरोमेटिक कंपाउंड। आई इन्फॉर्म्ड यू यस्टरडे कि एरोमेटिक कंपाउंड ऑफ बेंजीन का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये होता है, ईएस रिएक्शन, बाकी रिएक्शन उसका इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। सो सेम इज हियर, टॉपिक तो दिया है कि हेलोएरेन इज गिविंग द एसन रिएक्शन, बट अगेन इट इज रिटन कि हेलोएरेन और एरिल हैलाइड आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव नहीं करा है, एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा है कि हेलोएरेन एसन रिएक्शन जल्दी नहीं देता है, वेरी फ्यू चांसेस आर देयर, और व्हेन वी विल अप्लाई द स्पेशल कंडीशन देन ओनली इट विल बी पॉसिबल। तो टॉपिक का नाम है कि हेलोएरेन इज गिविंग एसन रिएक्शन, बट इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस द टू थिंग्स। इस टॉपिक में हम दो चीज पढ़ेंगे एंड बोथ विल गिव यू क्वेश्चन, ठीक है, बोथ विल गिव यू मार्क्स। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि व्हाई हेलोएरेन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स एसन रिएक्शन, हेलोएरेन एसन रिएक्शन जल्दी क्यों नहीं देता है या बहुत कम रिएक्टिव एसन रिएक्शन के लिए क्यों है, मींस हेलोएरेन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जल्दी क्यों नहीं होता है, व्हाई इट इज नॉट शोइंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और शोइंग वेरी लेस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड सेकेंड फिर पढ़ेंगे व्हाट आर द कंडीशन इन विच हेलोएरेन्स आर शो एसन रिएक्शन, वो कौन से कंडीशन है जिसमें हेलोएरेन एसन रिएक्शन शो करेगा। तो पहला वी आर गोइंग टू स्टार्ट, पहले ये बता दिया गया है that haloarenes are very less reactive, यही क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट इन एनसीईआरटी एक्सरसाइज, दिस क्वेश्चन इज देयर कि why aryl halides are extremely less reactive towards nucleophilic substitution reaction, write the reason लिखिए, then there are 4 reasons, कितने रीजन हैं, 4 reasons, ठीक है, 4 रीजन हैं। फर्स्ट रीजन, हेलोएरेन मतलब बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड, हेलोएरेन इज शोइंग रेजोनेंस इफेक्ट, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। सो इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, 4 इफेक्ट आपने पढ़ा होगा ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें से रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है ये एरोमेटिक कंपाउंड शो करता है। सो हेलोएरेन इज एरोमेटिक कंपाउंड एंड इट्स शो रेजोनेंस इफेक्ट। फिर आता है विच टाइप ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट इट इज शोइंग, आपको पता है कि रेजोनेंस इफेक्ट 2 टाइप का होता है, क्लास 11 में बताया गया होगा, प्लस आर माइनस आर, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट एंड नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, देन हेलोएरेन्स आर शो प्लस आर, हेलोएरेन्स प्लस आर या रेजोनेंस इफेक्ट शो करते हैं। बट इन हेलोएल्केन, हेलोएल्केन में एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, सो हेलोएल्केन इज नॉट शोइंग रेजोनेंस इफेक्ट। तो पहला कंडीशन तो ये है कि हेलोएरेन इज शोइंग रेजोनेंस इफेक्ट, that's why it is less reactive towards SN reaction, but haloalkane is not showing resonance effect, that's why it is more reactive towards SN reaction। तो क्वेश्चन आया सर resonance effect से आखिर क्या हो जा रहा है कि ये SN reaction नहीं शो कर रहा है। so see, due to resonance effect, if you will see this, ये resonance को दिखा रहा है, then if you will see this,
तो इसमें बॉन्ड ब्रेक कहाँ से होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए बॉन्ड ये ब्रेक होना चाहिए, बेंजीन रिंग का और हेलोजन का। देन सी, ड्यू टू रेजोनेंस बिटवीन द बेंजीन रिंग एंड हेलोजन व्हाट इज हैपन? डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। रेजोनेंस के कारण बेंजीन रिंग और हेलोजन के बीच क्या हो जा रहा है? डबल बॉन्ड फॉर्म हो जा रहा है। ड्यू टू डबल बॉन्ड दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, सो इट इज नॉट इजी टू ब्रेक दिस। तो इसको ब्रेक करना इजी नहीं है, और जब ये इजीली ब्रेक नहीं होगा तो Cl माइनस वहां से रिलीज नहीं होगा। Cl माइनस रिलीज नहीं होगा, सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाएगा। जबकि हैलो एल्केन की अगर बात करें तो वहां रिजोनेंस नहीं होता है। सो द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन दैट इज सिंगल बॉन्ड, सो इट कैन बी इजिली ब्रोकन डाउन टू गिव द न्यूक्लियोफाइल एंड टू डिस्प्लेस विथ अनदर न्यूक्लियोफाइल। तो रिजोनेंस के कारण आपको केवल इतना लिखना है कि इन हैलो एरेन are not so or very less reactive towards SN reaction due to following four reasons. First one, haloarenes are so resonance effect, but haloalkanes are not so resonance effect. केवल इतना लिखना है। If question will be there कि what happens due to resonance effect that haloarenes are less reactive towards SN reaction? resonance effect से ऐसा क्या हो जाता है कि haloarene less reactive हो जाता है? ड्यू, तब आप लिखेंगे ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट देयर इज डबल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द halogen and carbon atom of benzene ring, due to which the process of substitution of nucleophiles becomes difficult. But in haloalkane resonance is not there, so bond present between carbon and halogen is a single bond, so it can be easily broken down and substituted by another nucleophile. So haloalkane will give the SN reaction and haloarene will not give the SN reaction. तो पहला रीजन हुआ रेजोनेंस, और रेजोनेंस से होगा क्या ये बता दिया गया। नाउ second is there the halogen which attach in haloarene with carbon। haloarene में halogen जिस कार्बन से अटैच होता है that carbon is sp2 hybridized carbon। क्योंकि बेंजीन रिंग में सारा सिंगल डबल है, तो each carbon is having double bond। हर कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, either लेफ्ट साइड और राइट साइड। and if a carbon is having double bond, then that means that is sp2 hybridized कार्बन। इसका मतलब वो sp2 hybridized कार्बन होता है। So in benzene ring all the carbon is sp2 hybridized carbon and halogen which attach with sp2 hybridized carbon, ठीक है, that is slightly strongly bonded in comparison to haloalkane। haloalkane में halogen जिस कार्बन से अटैच होता है that is single bonded carbon, means sp3 hybridized carbon। तो second reason to show less reactivity towards SN reaction of haloarene is in haloarene halogen is attached with sp2 hybridized carbon, and in haloalkane halogen is attached with sp3 hybridized carbon। now see here sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में एस कैरेक्टर का नाम आपने सुना होगा क्लास 11th में ही। एस कैरेक्टर मतलब कितना परसेंट एस ऑर्बिटल है, तो sp2 मतलब टोटल 3 ऑर्बिटल है, 1s2p 3 ऑर्बिटल, और 3 ऑर्बिटल मिलके कितना परसेंट बना रहे हैं? 100%। तो एक ऑर्बिटल कितना हो गया? 33% अप्रॉक्स। तो एस का परसेंटेज कितना है? 33%। यही देखेंगे इस वाले में, तो sp3 1s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल, टोटल कितने ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 4। सो 4 ऑर्बिटल आर 100%, सो एनी वन ऑर्बिटल इज 25%। सो इसमें s ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन कितना है? sp3 में 25% और sp2 में 33%। और जितना ज्यादा s कैरेक्टर होता है उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है उतना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन पेयर को होल्ड कर सकता है। सो sp2 वाले में होल्डिंग स्ट्रॉन्गर है, sp3 वाले में होल्डिंग वीकर है,
इट मीन्स sp2 वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, sp3 वाला बॉन्ड वीकर है, सो दैट sp3 बॉन्ड इज ब्रोकन डाउन इजली एंड इट गिव द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजली। तो दो चीजें हुआ। फर्स्ट रीजन आई इन्फॉर्म यू, केवल आपको इतना लिखना है कि हेलो एरेन्स आर सो रिजोनेंस इफेक्ट बट हेलो एल्केन्स आर नॉट सो रिजोनेंस इफेक्ट, दैट्स व्हाई हेलो एरेन्स आर लेस रिएक्टिव। Second, in haloarenes, the halogen is attached at sp2 hybridized carbon, and that bond is stronger bond. And in haloalkane, halogen is attached at sp3 hybridized carbon. The bond is weaker bond. That's why haloarene is not so SN reaction or less reactive towards SN reaction. Now, third, ये 1-2 लिखा है, this will be third. ये थर्ड पॉइंट होगा, थर्ड रीजन, एंड दिस वन इज फोर्थ पॉइंट, फोर्थ रीजन, total 4 reason. It is given in your NCERT also, 1 2 3 4. Now see, if haloarene will show the SN reaction, then this bond must be broken down. ये bond टूटेगा. If this bond will be broken down, then halogen will get the negative charge and the phenyl group, that is benzene ring group, this will get the positive charge. जैसा आपको दिख रहा है कि यहाँ कार्बन है, यहाँ हेलोजन है, कार्बन हेलोजन में हेलोजन is more electronegative, so electron pair will be shift towards halogen, so halogen will get the negative charge and carbon will get the positive charge. So see, this is benzene ring जो है उसमें एक हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि उसी हाइड्रोजन से बॉन्ड बना था, so this is C6H5. C6H5 को व्हाट आई इन्फॉर्म्ड यू, फेनिल, इसको फेनिल कहते हैं। फेनिल इज हैविंग वन चार्ज दैट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज को क्या कहते हैं, फेनिल कैटायन, इसीलिए यहाँ लिखा है फेनिल कैटायन। सो फॉर शोइंग एसएन रिएक्शन, एसएन रिएक्शन शो करने के लिए, एसएन रिएक्शन शो करने के लिए haloarene must be undergo self ionization, self ionization करना पड़ेगा, and by self ionization it will produce phenyl cation. self ionization के द्वारा ये क्या बनाएगा, phenyl cation, and phenyl cation is not stable species. phenyl cation stable species नहीं है, because in this condition it lose its resonance. इस कंडीशन में ये रिजोनेंस लूज कर देता है। देखिए, नॉट टू बी स्टेबलाइज्ड बाय रिजोनेंस, रिजोनेंस इसमें नहीं रह जाता है, और रिजोनेंस अगर नहीं रहता तो स्टेबिलिटी कैंसिल हो जाती है एरोमेटिक कंपाउंड की। सो फेनिल कैटायन इज अनस्टेबल स्पीसीज। फिर से चेक करिए, अगर हेलोएरेन को एसएन रिएक्शन शो करना है, देन दिस बॉन्ड मस्ट बी ब्रेक, and if this bond will be break, then the phenyl will get the positive charge to form the phenyl cation, और अगर phenyl cation बनता है then it lose its resonance effect, तब इसका resonance effect cancel हो जाएगा, and due to lose in resonance effect it will be becomes unstable, और phenyl cation unstable हो जाएगा, and unstable phenyl cation is formed. That's why it is not go in this type of bond breaking, means not so SN reaction, because it form unstable phenyl cation. तो वही चीज यहाँ लिखा है, means third reason will be there कि for SN reaction haloarene must undergo self ionization and form unstable phenyl cation, which is not पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है। अनस्टेबल कंपाउंड किसी प्रोडक्ट में नहीं बनाया जाता, प्रोडक्ट में बनाया जाता है, ठीक है, स्टेबल कंपाउंड। सो थर्ड इज दिस वन कि फेनिल कैटायन जो बनेगा दैट विल बी इनस्टेबल और अनस्टेबल। एंड लास्ट, तो ये तो क्लियर हो गया कि हेलोएरेन इज नॉट फॉर्मिंग कैटायन, हेलोएरेन कैटायन नहीं बनाएगा क्योंकि ये अनस्टेबल है। सो हेलोएरेन विल फॉर्म द एनायन, एनायन बनाएगा, और एनायन का मतलब हैविंग इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इट हैज टेकन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सम अदर्स, इसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है, एंड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में विच विल बी द अटैकिंग रेजेंट, न्यूक्लियोफाइल, दैट विल बी आल्सो नेगेटिव।
सो फेनिल कैटायन नहीं बनाता है क्योंकि फेनिल कैटायन इज इनस्टेबल. सो हेलो एरेन विल बी मोस्टली फॉर्म द फेनिल एनायन. हेलो एरेन कोशिश करेगा फेनिल एनायन बनाने का. एंड फॉर फॉर्मिंग द फेनिल एनायन, ठीक है, when nucleophile will be attacked, then there will be repulsion between the phenyl anion and nucleophile because of same charge. दोनों के ऊपर सेम चार्ज होगा तो फेनिल एनायन और न्यूक्लियोफाइल दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे एंड ड्यू टू रिपल्सन दे विल नॉट ज्वाइन टुगेदर एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल नॉट टेक्स प्लेस. सो इतना समझाने का बात था कि क्या होता है. Now how you will write this? So see, your heading will be there. Second chemical property, nucleophilic substitution reaction. In this you will write कि haloarenes or aryl halides are extremely haloarenes show resonance effect and haloalkanes not so resonance effect. That's why haloarenes are less reactive. Second, in haloarene, halogen is attached with sp2 hybridized carbon, and in haloalkane, halogen is attached with sp3 hybridized carbon. That's why haloarene is less reactive towards SN reaction. Number third, for SN reaction, haloarene must be undergo self-ionization and form the phenylcation, but phenylcation is not a stable species. That's why it not form the phenylcation and not undergo SN reaction. Number next, fourth, because haloarene is form stable anion which have negative charge, and the attacking species of SN reaction is nucleophile which is also having negative charge. So if both will have the negative charge, so both will not combine, they will repel to each other. So because of possible repulsion, haloarene is less reactive towards SN reaction. So this is about the SN reaction, extremely less reactive, its reason. Now, next, what are the condition in which haloarene can give the SN reaction? कौन सा कंडीशन है जिसमें हेलोएरेन एसन रिएक्शन देगा? अभी तक तो हम पढ़ रहे थे वेरी लेस रिएक्टिव, एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि व्हाट आर द कंडीशन इन विच हेलोएरेन विल गिव द एसन रिएक्शन. वो कौन सा कंडीशन है जिसमें हेलोएरेन एसएन रिएक्शन देगा? सो सी, देयर आर टू कंडीशन. First of all, if only haloarene is there, then it will give SN reaction with aqueous NaOH, but not in this normal condition. It require very high pressure and high temperature. Very high pressure I have told, and temperature में high temperature. Very high pressure is 300 atm. This time we are at 1 atm. हम 1 atm पर हैं. 300 atm मतलब 300 टाइम्स ऑफ प्रेशर. प्रेशर बहुत ज्यादा हाई करना पड़ेगा एंड टेम्परेचर विल बी दैट इज 623 Kelvin. When we will provide very high pressure and low temperature with haloarene and aqueous NaOH, then only it will show the SN reaction. तब ये SN reaction show करेगा. And in this SN reaction, the name is there, nucleophilic substitution reaction. So this nucleophile OH minus will be displace the nucleophile Cl minus to form the new product. That phenol alcohol. चीजें आपको पता हो गई. रिमेम्बर, वन इज टॉलुइन. व्हेन बेंजीन इज कंटेन CH3, जब बेंजीन पे CH3 होगा तो टॉलुइन कहेंगे. Another, yesterday in Sandmeyer reaction, when benzene is having NH2, अगर बेंजीन पे NH2 होगा then it is called aniline.
aniline. And when benzene is having OH, then it is called phenol. So first is there कि haloarine require very high pressure and high temperature to show the SN reaction. ये पहला कंडीशन है. But if you don't want to apply very high pressure and high temperature, then the another way is here. एक दूसरा तरीका भी है. The another way is here कि add the NO2 group, that is electron withdrawing group. Remember class 11th में आपने पढ़ा होगा, there are two types of group, electron withdrawing group and electron donating group, EWG, EDG. So haloalkane में जो halogen है, this is EDG. ये EDG है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. इसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए इफ वी विल ऐड एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG, तो इसका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा. EDG जो इलेक्ट्रॉन देगा, इट विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन, दैट इलेक्ट्रॉन विल बी गेन बाय द, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को लेता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को देता है उस चेन में. सो Cl इज गिविंग द इलेक्ट्रॉन. अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ देखिए Cl इज गिविंग द इलेक्ट्रॉन टू स्टार्ट द रिजोनेंस. रिजोनेंस के लिए Cl ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए Cl पे पॉजिटिव चार्ज आया. नाउ NO2 इज टेकिंग द इलेक्ट्रॉन, तो Cl ने इलेक्ट्रॉन दे के रिजोनेंस लाया, NO2 उस इलेक्ट्रॉन को लेकर रिजोनेंस को कैंसिल करेगा. सो रिजोनेंस कैंसिल होगा, then it will be undergo SN reaction easily. So second is here कि in the presence of any EWG group, EWG लिखा है, and in your syllabus EWG group is only one, NO2. आपके सिलेबस में EWG ग्रुप केवल एक पढ़ना है, NO2. और जो दो है वो चैप्टर में है, दो क्या तीन है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, वो चैप्टर में है. ठीक है. सो second condition, first condition, in which condition the haloarine can be show the SN reaction effectively, then the condition is there very high pressure, high temperature with aqueous NaOH. remember alcoholic नहीं, alcoholic से elimination होता है, aqueous से substitution होता है. and second कि if we will apply or add any EWG group like NO2 group at ortho and para position, then it increase the reactivity towards SN reaction of haloarine. तो ये haloarine के लिए SN reaction की reactivity बढ़ा देता है. Now see, अभी एक NO2 ऐड किया गया, यही क्लोरोबेंजीन है, यही क्लोरोबेंजीन है, इसमें एक NO2 ऐड किया गया पैरा पोजिशन पे, सिंगल NO2. टेम्परेचर तुरंत डाउन हो गया 443 केल्विन, कहाँ 623 चाहिए था, और प्रेशर की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल प्रेशर पे ये वर्क कर जाएगा. सो बाय एडिंग एनी EWG द SN रिएक्शन कैन बी पॉसिबल इन haloarine. और यहाँ पे OH ने Cl को डिस्प्लेस कर दिया. ठीक है. इफ वी विल अप्लाई द 2NO2 ग्रुप, अब 2NO2 ग्रुप, यहाँ पे 2 नहीं है, इसको 2 आप लिख लीजिएगा. इफ 2NO2 ग्रुप, आप उसी कंपाउंड पे 2NO2 ग्रुप अटैच कर दिए, मतलब ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दिए, देन द टेम्परेचर बिकम्स मोर डाउन, मींस रिएक्शन बिकम्स मोर पॉसिबल. जितना EWG ऐड करेंगे उतना रिएक्शन की रिएक्टिविटी बढ़ेगी, एंड द रिएक्शन बिकम्स more easily and form the product. And in the same, if we will attach the 3NO2 group, 3NO2 group attach कर दिए, then you just require to warm with water. अब NaOH भी आपको नहीं चाहिए. Now you don't want the NaOH, अब NaOH भी नहीं चाहिए. 3NO2 ग्रुप अटैच करने से इसकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा हो गई कि यू जस्ट रिक्वायर टू हीट दिस कंपाउंड विथ वाटर एंड इट विल शो द SN रिएक्शन, और ये SN रिएक्शन शो करेगा. सो रिमेंबर देयर आर टू कंडीशन
by which या in which haloarene can be show the, ठीक है, SN reaction effectively or more easily. That is, first the haloarene react with aqueous NaOH at very high pressure 300 atm and high temperature 623 Kelvin. Then it form the corresponding product by SN reaction और show the SN reaction easily. For example ये लिख देंगे. Second लिखेंगे haloarene, और ऐसे भी लिख सकते हैं the reactivity of haloarene towards SN reaction can be increased by adding an electron group like NO2 at ortho and para position. फॉर एग्जाम्पल ये तीनों आप लिख देंगे, बता देंगे बिकॉज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होता है दिस इज शोइंग माइनस आर इफेक्ट, एंड जो हैलोजन है ये शो कर रहा है, अभी पीछे आपको बताया था प्लस आर इफेक्ट. सो बोथ विल बी कैंसिल द इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ ईच अदर एंड haloarene कैन इजिली अंडरगो SN रिएक्शन. दिस इज अबाउट द SN रिएक्शन. कि SN रिएक्शन में क्या पढ़ना था कि haloarene पहले तो SN रिएक्शन देता है कि नहीं, तो एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव है. फिर रीजन क्यों एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव है, 4 कंडीशन 4 रीजंस आर देयर. देन इन विच कंडीशन इट्स SN रिएक्टिविटी कैन बी इंक्रीज. सो देयर आर 2 कंडीशन, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि व्हाई द रिएक्टिविटी ऑफ haloarene becomes increases in presence of electron withdrawing group, because electron withdrawing group show the minus R effect, so it cancel the effect of plus R effect of halogen and make the haloarene to undergo SN reaction easily. Now next is ES reaction, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझने से पहले हमको रिजोनेंस समझना होगा. सो नाउ रिमेंबर, जब भी हमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझना हो तो पहले रिजोनेंस. आई एम गोइंग टू डिस्कस द रिजोनेंस. ठीक है, रिजोनेंस में क्या होता है ध्यान से देखिए. देयर इज बेंजीन रिंग, क्लास 11th में आपने देखा होगा 5 स्ट्रक्चर बनते हैं, फर्स्ट और लास्ट सिमिलर होता है. इस पे क्या अटैच है, हैलोजन. हैलोजन एटम मींस फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन. हैलोजन इज हैविंग हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हैलोजन इज बिलोंग टू 17th ग्रुप एंड इट इज हैविंग 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. Out of 7 valence electron, 1 electron is participate in this bond formation. एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बना दिया. So how many electrons are remain on halogen atom? कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन. That you can see here. ये 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि हैलोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड बनाया. नाउ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन एट हैलोजन, हैलोजन पे ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंड हैलोजन इज हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट. हैलोजन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास है. 1 इलेक्ट्रॉन उसने शेयर किया है बेंजीन रिंग से, तो 1 उसका खुद का हो गया, और 1 बेंजीन रिंग का उसने शेयर किया, तो टोटल 8. एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 बॉन्ड इज कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, सो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन. सो हैलोजन इज हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट विथ इलेक्ट्रॉन पेयर. तो जब व्हेन एनी एटम विच इज अटैच विथ बेंजीन रिंग, जब कोई एटम बेंजीन रिंग से अटैच होता है और उसके पास कंप्लीट ऑक्टेट होता है और इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, देन दैट एटम इज एक्ट एज EDG. वो एटम EDG का वर्क करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का. सो सी एरो आपको दिख रहा है कि हैलोजन इज गिविंग इट्स 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन नहीं. एंड दैट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कमिंग बिटवीन द कार्बन एंड हैलोजन बॉन्ड.
यहाँ पर आया, सो वन पेयर इलेक्ट्रॉन आएगा तो देयर विल बी डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बनेगा। एंड द डबल बॉन्ड विच वर प्रेजेंट हियर, जो डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट था, ये एरो से दिख रहा है कि इट विल बी ब्रोकन डाउन एंड इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर विल कम एट दिस पोजीशन। तो डबल बॉन्ड देखिए ध्यान से, मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में सिंगल डबल ये हैलोजन। So first of all, halogen is having 3 lone pair or 6 electron. So halogen will donate its one lone pair to this bond. एक लोन पेयर इस बॉन्ड के जगह पे आएगा, सो ये सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा, जो कार्बन यहाँ पर है, कार्बन की वैलेंसी अभी 4 कंप्लीट है, बट एक बॉन्ड तो 4 हो जाएगी, तो 5 वैलेंसी को वापस से 4 करने के लिए ये डबल वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होकर के इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देगा। सो व्हाट विल बी हैपन इन दिस, नेक्स्ट वाले में आपका क्या हो जाएगा, बस पाई इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को नहीं। जो सिंगल बॉन्ड होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद जो डबल बनता है वो पाई बनता है, आपको पता है। सो हियर हैलोजन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, जो आपको ये दिख रहा है, ठीक है। इसमें ये स्ट्रक्चर गलत है, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड नहीं रहेगा, बिकॉज दिस बॉन्ड इज चेंज इनटू निगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड निगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया, क्यों, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था बॉन्ड वाला, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एंड जहाँ इलेक्ट्रॉन जाता है दैट कार्बन विल बी निगेटिव, एंड हैलोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, सो दिस विल बी गेट द पॉजिटिव चार्ज, एंड रेस्ट बॉन्ड विल बी एट इट्स ओन प्लेस। अब दिस इलेक्ट्रॉन विल बी मूव एट दिस पोजीशन। ये इलेक्ट्रॉन देखिए, एरो सब कुछ दिखा रहा है। नाउ जो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आया था, दिस इलेक्ट्रॉन विल बी मूव एट दिस पोजीशन, मीन्स बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड कार्बन, यहाँ पर, दैट इज हियर, इलेक्ट्रॉन विल बी मूव एट हियर, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, देन व्हाट विल बी हैपन, द न्यू बॉन्ड विल फॉर्म हियर, यहाँ पे नया बॉन्ड बन जाएगा, एंड जो यहाँ पे बॉन्ड पहले से था, इट्स इलेक्ट्रॉन विल बी मूव ऑन नेक्स्ट कार्बन, इसका इलेक्ट्रॉन अगले कार्बन पे चला जाएगा। सो इफ आई विल ड्रॉ द रेजोनेंस, अब रेजोनेंस केवल आपको इलेक्ट्रॉन आगे आगे मूव कराते जाना है, वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन। आई एम ड्रॉइंग हियर, ठीक है। नाउ सी, ये पहला स्ट्रक्चर है, फर्स्ट स्ट्रक्चर, इन दिस हैलोजन इज हियर, सो हैलोजन इज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन, ये एक पेयर देगा यहाँ पे, एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल कम्स हियर, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर में कन्वर्ट होगा, पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड में, हैलोजन का पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा, द पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ हैलोजन फॉर्म द बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ने बना दिया, और जो पहले से बॉन्ड था वो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया, एंड रेस्ट इज हियर। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, बॉन्ड बनाएगा, एंड दिस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन विल बी मूव टू कन्वर्ट इनटू पेयर इलेक्ट्रॉन। सो इन नेक्स्ट व्हाट विल बी हैपन, नेक्स्ट में ध्यान से देखिए, अब डबल बॉन्ड हैलोजन जहां था वहां रहेगा, डबल बॉन्ड विल कम्स हियर, एंड द इलेक्ट्रॉन विल कम्स हियर, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ आ गया, सो निगेटिव चार्ज विल कम्स हियर, निगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, और यहाँ का डबल बॉन्ड जैसे था वैसे रहेगा। नाउ दिस निगेटिव चार्ज विल मूव बिटवीन द नेक्स्ट कार्बन के बीच में जाएगा, एंड द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन विल मूव एट नेक्स्ट कार्बन। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनेगा उसमें क्या होगा, इन दिस डबल बॉन्ड एक्स, देन यहाँ डबल बॉन्ड था, नाउ डबल बॉन्ड विल कम्स हियर, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, एंड इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी कम्स हियर, सो इट विल गेट द नेगेटिव चार्ज, एंड एट लास्ट, अब लास्ट में क्या होगा,
अगेन दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव हियर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा एंड दिस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन विल मूव बैक, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वापस से जहां से आया था वहां चला जाएगा हेलोजन के पास. सो द न्यू bond will be here, here and here and halogen will again get the electron. So इसमें 5 स्ट्रक्चर बन रहा है, 1 2 3 4 5 इन रिजोनेंस. रिजोनेंस में हमेशा 5 स्ट्रक्चर बनता है, बट आउट ऑफ दैट 5 फर्स्ट एंड लास्ट आर सिमिलर. पहला और आखिरी सेम होता है. फर्स्ट एंड लास्ट इज नॉट हैविंग एनी चार्ज, फर्स्ट और लास्ट पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पे 4 ही स्ट्रक्चर दिखा रहा है, क्योंकि पहला और आखिरी सिमिलर हो जाता है. वी नीड टू जस्ट चेक द 3 सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ. जहां पे भी हमको चेक करना है वहां कौन सा चेक करेंगे, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर. सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर केवल चेक करेंगे, बिकॉज सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर इज हैविंग द चार्ज. केवल सेकेंड थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर में चार्ज है, फर्स्ट और फिफ्थ स्ट्रक्चर में चार्ज नहीं है. सेकेंड थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर में हम क्या चेक करते हैं, वेयर द निगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट. निगेटिव चार्ज कहां पर आया है, सी निगेटिव चार्ज इज एट ऑर्थो पोजीशन, next carbon to halogen ortho position, then negative charge is at para position and negative charge is again left side, so ortho position. यहाँ पे भी देख सकते हैं negative charge is ortho position, negative charge is para position and negative charge is ortho position. And which type of reaction we are discussing, we are discussing the ES reaction. In ES reaction what will be the attacking reagent, electrophile. So electrophile मतलब positive charge. So where it will be attack, where the negative charge is present. So in haloarene, haloarene में due to resonance where the negative charge is coming, negative charge कहाँ आ रहा है, आर्थो और पैरा पे आ रहा है. So electrophile will be only attack at ortho and पैरा पोजीशन. और जब आर्थो और पैरा पोजीशन पे ही अटैक करेगा, सो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑर्थो एंड पैरा. और आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेगा, इसीलिए कहता है हेलोजन ग्रुप इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. ये सब क्लास 11th में आपको बताया गया होगा कि हाउ द रेजोनेंस इज प्रेडिक्टिंग द प्रोडक्ट. रेजोनेंस से ही आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, आर्थो पैरा बनेगा कि मेटा बनेगा. सो बाई सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर, पहले रेजोनेंस लिखेंगे, पहले हेडिंग लेंगे ईएस रिएक्शन. In ES reaction, sub heading will be there, resonance in haloarene. haloarene में resonance, और resonance का ये स्ट्रक्चर बना देंगे. इस स्ट्रक्चर में केवल एक गलती है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, रेस्ट इज राइट. ठीक है. नाउ व्हाट यू विल राइट, लिसन केयरफुली. Heading will be ES reaction, in that subheading will be there resonance in haloarene. Then you will draw this structure, and after this you will write by second, third and fourth structure. Second, third and fourth structure we can see electron density increases at ortho and para position. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जा रहे हैं, और जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वहीं पे निगेटिव चार्ज आता है, तो निगेटिव चार्ज इज शोइंग कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है. सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीजेज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, देन मेटा पोजीशन. मेटा पोजीशन पे कुछ नहीं हो रहा है, ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है. सो द अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल will be attack at ortho and para position. इसलिए जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज होगा, सो इट विल बी अटैक एट नेगेटिव पार्ट, negative position. So upcoming electrophile will be attack at ortho and para position and form the ortho para product. So haloarene में ES रिएक्शन में ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेगा. आपको जितना रिएक्शन यहाँ दिखेगा आपको दिखा दे रहे, जो हमको पढ़ना है कल ES रिएक्शन में हैलोजिनेशन, ये आपको आइडेंटिफाई करना होता है. बस रिजोनेंस देख लीजिए, आर्थो मेटा पैरा क्या बनेगा बस वहां पे लगा दीजिए. देखिए हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन में ऑर्थो पैरा बन रहा है,
nitration, ortho para. Next, sulfonation, ortho para. Next, Friedel-Crafts, alkylation, ortho para. acylation, ortho para. तो सब में ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट ही बनेगा. हेलो एरेन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. वाई? अगर ऐसे पूछेगा कि हाउ कैन यू सो दैट हेलो एरेन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो आप रेजोनेंस बनाएंगे और लिखेंगे बाय सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर वी कैन सी in haloarene electron density is increases at ortho and para position. That's why the electrophile will be attack at ortho and para position and form the ortho para product. It means the haloarene is ortho para directing group. So अभी हमने केवल ES रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा ये देखा. Now tomorrow we will prepare the product. So I hope tomorrow will be the last day for this chapter. So if anyone want to ask any